Let us see the next question. Create butterfly spread strategy with the following information. Information is provided for the call options. Exercise price 100, 110, 120. Premium is given 15, 16. So two premiums are provided to us, means one is to buy option and another is to sell option. Again, for this exercise price, two premiums are given, means 10 rupees is the price at which you can buy the option and 9 rupees is the price at which you can sell option, and so on. All options have expiry of July. If price of the security in the month of July is 0, 40, 100, 106 and so on, you are required to calculate profit loss, break even point and show diagram. That is the question. Please go through the question. Let us have understanding that, say, in case of butterfly spread strategy, what we can do. Right now I am giving explanation to you, assuming that the investor is expecting that, say, there will be stability of the prices, in a way that, say, the prices are not going to vary, the prices are not going to be too much volatile. In that case, how you can create the butterfly spread strategy, that is explaining to you. In that case, the answer is very simple. What happens that, say, you are required to buy two options and so you have to sell two options. So what happens that, say, whatever the options that, say, you buy, that is over here 100 and 120, in between, that is average of that exercise price, is the price at which you will sell two options. This is the way you will be entering into the transaction for butterfly spread strategy, if at all you are expecting the price to remain stable. Once we will compute the answer along with the profit loss diagram, we will be able to understand that, say, how we will be able to make a profit like this. अगेन बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटेजी जो है वो आप कॉल ऑप्शन का कॉम्बिनेशन करके कर सकते हो या तो पुट ऑप्शन का कॉम्बिनेशन करके कर सकते हो. इट इज नॉट लाइक दैट से द कॉल एंड पुट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो सिर्फ कॉल ऑप्शन या तो सिर्फ पुट ऑप्शन. अगेन यहां पे क्या किया जाएगा, आप दो अपोजिट ट्रांजैक्शंस में एंटर करोगे, यानी कि आपने यहां पे दो ऑप्शंस खरीदे, एट द सेम टाइम आपने दो ऑप्शंस खरीदे, दो ऑप्शंस बेचे. सो यू बाय two call options, that is over here at the rate of 100 rupees exercise price and 120 exercise price. इसका जो एवरेज होगा, that is the price at which you will sell two call options, that is at the rate of rupees 110. Of course we understand that, से जो ऑप्शन हम लोग बेचेंगे उसके लिए हमको प्रीमियम मिलेगा, जो हमको मिलने वाला प्रीमियम है वो ऑफ कोर्स कम होगा. दैट इज व्हाट वी विल रिसीव 9 और हमको ये दो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, दैट इज 16 and 6. दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो दैट वी विल हैव. तो 18 रुपीज मिले, 22 रुपीज पे किए, तो 4 रुपए का इनिशियल कैश आउटफ्लो हुआ. फिर हमको अलग अलग स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर के ऊपर प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करना है, अलॉन्ग विद दैट से द ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद डायग्राम. एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि अगर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस स्टेबल रहेगा तो मुझे प्रॉफिट कैसे हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम से इसको बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्यों कहा जाता है वो भी हम लोग समझेंगे. सो राइट डाउन आंसर फॉर द क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट, butterfly spread strategy can be entered upon
either by using call options or put options. Second point, over here two options will be purchased and two options will be sold. Full stop. With paragraph write down, assuming that trader is expecting prices are going to remain stable, he is entering in butterfly spread strategy. Full stop. In that case, trader will one, purchase two call options with different exercise price. Second, sell two call options with an exercise price, comma, average of about two exercise price. In bracket write down, usually exercise price at which options are sold is very near to current market price of सिक्योरिटी. ये जो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवा है उसका भी क्या रीज़न है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. पहले थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगा. राइट ऑन आंसर. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ initial premium so in that write down buy call at the rate of 100, buy call at the rate of 120, sell two call at the rate of 110.
सो 16 and 6 ये दो आप पे करोगे, 16 and 6, और आपने दो कॉल ऑप्शन बेचे हैं तो आपको 9 रुपये मिलेंगे फॉर 2 टाइम्स. सो 9 + 9 दैट कम्स टू 18. सो 22 रुपीज़ आपने पे किए, 18 रुपीज़ आपको मिले, तो 4 रुपीज़ का इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा. सो कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल प्रीमियम पेमेंट. नेक्स्ट, calculation of profit or loss for each of the spot price of equity share. उसमें कॉलम नंबर 1 स्पॉट प्राइस जिस दिन ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है, तो हमारे एग्जांपल में कौन सा हुआ, जुलाई मंथ, तो स्पॉट प्राइस जुलाई मंथ के एंड का. फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉल ऑप्शन होल्डर कौन सी एक्सरसाइज प्राइस का 100 रुपये, एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क, और पे ऑफ हमको मिलेगा. अगेन कॉल ऑप्शन होल्डर 120, एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क, अगेन हमको पे ऑफ मिलेगा. मैं सब सेल प्राइस, परचेज प्राइस, पे ऑफ ऐसा नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो स्पेस परमिट नहीं करेगा. कॉल ऑप्शन सेलर 110, अगेन एक्सरसाइज प्राइस और पे ऑफ. हमको ध्यान रखना है कि हमने दो ऑप्शंस बेचे हैं, प्रीमियम, और आखिरी में क्या होगा, आखिरी में होगा प्रॉफिट लॉस. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू से कंप्लीट द टेबल. सी ऑलवेज माय सजेशन इज कि आप लोग प्रीमियम से शुरू कीजिए. जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 रुपये का इनिशियली प्रीमियम पे किया है, तो मेरे हिसाब से स्टेप नंबर 1 आपका होना चाहिए प्रीमियम, जिसपे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 रुपये का पेमेंट लिखेंगे. हर एक स्पॉट प्राइस के ऊपर हमको 4 रुपये का ही खर्चा होगा. वाई, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट irrespective of the exercisation of option, premium is going to be ₹4 only. सेकेंड, जिसमें एक्सरसाइजेशन एंड पे ऑफ, आई एम कॉल ऑप्शन होल्डर एट एक्सरसाइज प्राइस 100. सो जब स्पॉट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस सेम है, देन से आई एम एट द मनी, सो आई एम इनडिफरेंट वेदर टू एक्सरसाइज द कॉल और नॉट. जब प्राइस उसके नीचे रहेगा तो मैं अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा. जब प्राइस उसके ऊपर जाएगा, देन इन दैट केस आई विल एक्सरसाइज माई कॉल ऑप्शन. अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं या तो मैं इनडिफरेंट हूं, उस केस में मेरा पे ऑफ क्या होगा, मेरा पे ऑफ होगा 0. जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो क्या होगा, मैंने सिक्योरिटी 100 रुपये में खरीदा, जिसको 106 रुपये में बेच दिया, तो मुझे 6 रुपये का पे ऑफ मिला. मैंने सिक्योरिटी 100 रुपये में खरीदा, जिसको 110 में बेच दिया, तो मुझे 10 रुपये का पे ऑफ मिला. Again 100 rupees is the buying price, 113 is the selling price, so 13 is the payoff, 20 is the payoff, 80 is the payoff, 9,900 is the payoff. That is the way we will be having the payoff. Third, 120 is the exercise price. At 120 again I am indifferent. जब प्राइस उसके नीचे होगा तब मैं अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा. जब प्राइस 120 से ऊपर चला जाएगा तो मैं अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा. अगर मैंने मेरा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया या तो मैं इनडिफरेंट हूं, तो वो हर एक सिचुएशन में मेरा पे ऑफ होगा 0 रुपीज. जब प्राइस 120 से ज़्यादा हो गया तो मुझे यहाँ पे 60 रुपीज़ का पे ऑफ मिलेगा. यहाँ पे मुझे पे ऑफ मिलेगा 10,000 रुपीज़ -120,
मुझे मिलेगा पे ऑफ 9880 का। ऐसा करूंगा मुझे पे ऑफ मिलेगा। नाउ फोर्थ, कॉल ऑप्शन सेलर। नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एट 110 जिसको मैंने ऑप्शन बेचा है ही इज इनडिफरेंट, बिलो देन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज, अबव देन दैट ही विल एक्सरसाइज। ऐसा हमको यहां पे समझना है। जब प्राइस 113 रुपये हुआ तो क्या किया उसने, अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो उसके लिए पॉजिटिव पे ऑफ 3 रुपये का, तो मेरे लिए नेगेटिव पे ऑफ होगा 3 रुपये का। पर मैंने ऐसे 2 ऑप्शंस बेचे हैं, सो 3 इंटू 2 मेरा क्या होगा, 6 रुपीज का नेगेटिव पे ऑफ होगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ 120 अगेन जिसको मैंने ऑप्शन बेचा है वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो क्या होगा उसके लिए पॉजिटिव पे ऑफ होगा 10 का एक ऑप्शन के लिए, तो 2 ऑप्शन के लिए कितना हुआ 20 रुपए का, 180। तो वापस उसके लिए क्या हुआ 70 रुपीज का पॉजिटिव पे ऑफ, तो मेरे लिए कितना होगा 140। नेक्स्ट 10,000 रुपीज, सो क्या होगा 10,000 माइनस 110 यानी 9890 इंटू 2, सो इट इज 19780। That is the amount of the negative payoff that we will have. So now let us see profit loss. फर्स्ट में क्या होगा 4 रुपये का लॉस हो गया, सेकेंड में अगेन 4 रुपये का लॉस, थर्ड में 4 रुपये का लॉस, फोर्थ में 2 रुपये का प्रॉफिट, नेक्स्ट 6 रुपये का प्रॉफिट, देन आई थिंक दैट 3 रुपीज प्रॉफिट, देन लॉस ऑफ ₹4, देन अगेन लॉस ऑफ ₹4 एंड देन अगेन लॉस ऑफ ₹4। ऐसा करके अलग अलग सिचुएशंस में प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होगा। अभी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे। नाउ लुकिंग टू द प्रॉफिट लॉस दैट वी हैव फाउंड, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट से दैट इज अ लॉस 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 और यहाँ पे प्रॉफिट है। यानी क्या हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट 100 रुपये और 106 रुपये के बीच में है, तो क्या किया जाएगा 100 रुपये में ये 4 रुपये ऐड किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग ब्रेक इवन पॉइंट। लेट अस चेक 104 इज एक्सीडिंग 100, तो मैं मेरा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा। 104 इज नॉट एक्सीडिंग 120, तो मैं मेरा दूसरा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। 104 डज नॉट एक्सीड 110, तो जो ऑप्शंस मैंने बेचे हैं वो एक्सरसाइज नहीं होंगे। 4 रुपये का जो प्रीमियम था उतना का उतना ही पे ऑफ है, सो प्रॉफिट और लॉस इज 0, ऐसा हम लोग समझते हैं। फिर इस पर हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रॉफिट है वापस ये लॉस में चला गया, यानी दूसरा भी ब्रेक इवन पॉइंट है। सो ये 113 में क्या करेंगे, ये 3 रुपये को ऐड करेंगे। हमेशा लोअर प्राइस में क्या किया जाएगा, हम लोग ऐड ही करेंगे। सो 113 प्लस 3 यानी 116। 116 इज एक्सीडिंग 100, तो मैं मेरा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। वाई, बिकॉज से जिसको मैंने ऑप्शन बेचा है, सॉरी वाई, बिकॉज से इट इज नॉट वर्थ एक्सरसाइजिंग फॉर मी। जिसको मैंने तो यहाँ पे 0 ऑप्शन बेचा है 110 की एक्सरसाइज प्राइस में, वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। सो ही विल एक्सरसाइज। सो 6 रुपये का पॉजिटिव पे ऑफ एक ऑप्शन का, सो 6 इंटू 2 12 रुपीज, ये वापस 4 रुपये, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट किया 100 प्लस 4, ये कैसे कैलकुलेट किया 113 प्लस 3, ये 12 रुपये कैसे आए, वी अंडरस्टैंड दैट से 116 माइनस 110, मुझे 6 रुपये देने के हैं एक ऑप्शन के, और वैसे 2 ऑप्शंस मैंने बेचे हुए हैं। दैट इज द वे वी विल बी हैविंग से द 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स ओवर हियर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट से डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा
एज यूजुअल हम लोग हमेशा 0 से शुरू करेंगे। जब स्पॉट प्राइस 0 है तो 4 रुपए का लॉस है। सो व्हेन द प्राइस इज 0 देयर इज अ लॉस ऑफ ₹4। द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 40, तो ये लॉस 4 रुपए का 4 रुपए रहता है। 40 to 100 तो भी 4 रुपए का ही लॉस है। एंड एट 104 यू कैन सी दैट देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। यानी क्या हुआ कि टिल द पॉइंट द प्राइस इंक्रीजेस टू 100 रुपीज, 4 रुपए का ही हमारा लॉस रहेगा। व्हेन द प्राइस इज गोइंग बियॉन्ड 100 से द लॉस इज रिकवर्ड एंड इट इज कन्वर्टेड टू प्रॉफिट। ऐसा हम लोग समझते हैं। जब प्राइस 110 रुपए होता है देन इन दैट केस देयर इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ₹6। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, दैट इज एन अमाउंट ऑफ ₹6। सो ओवर हियर देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 जब स्पॉट प्राइस हमारा हो जाएगा 110। जब प्राइस 110 से भी बढ़ जाएगा देन इन दैट केस जो ऑप्शन हमने बेचा था वो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा अभी। दैट इज द रीजन से व्हाट विल हैपन, वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो प्रॉफिट है से दैट इज गोइंग टू रिड्यूस इनिशियली। आप देख सकते हो दैट से 113 रुपये में प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होता है, फिर वो लॉस में कन्वर्ट होता है, और उसके पहले ऑफकोर्स देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। When the price is 120 or above than that, then in that case there is a constant loss of ₹4. That is what we can see. So the profit reduces over here, and beyond this point say it is going to remain same, that is an amount of ₹4. ये 120 रुपये का स्पॉट प्राइस है और ये 100 रुपये का स्पॉट प्राइस है। तो ये 100 रुपये, 4 रुपये उसमें ऐड किए तो 114, 104 इज द ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज 120, उस पर से 4 रुपये डिडक्ट किए, सो दिस इज 116। दिस इज द वे वी विल बी हैविंग the diagram for the butterfly spread strategy. तो this is the point at which the question comes to an end, पर अभी हम लोग ऑफकोर्स उसमें थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। सो फ्रेंड्स ओवर हियर जैसे मैंने आपको पहले लिखवाया कि जो एक्सरसाइज प्राइस पे हम लोग ऑप्शन बेचते हैं दैट इज यूजुअली द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। ये हमारा क्या होता है, यूजुअली स्पॉट प्राइस करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर होता है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक ये सारे ऑप्शंस एक्सपायर होंगे तब तक मार्केट में उसका प्राइस का वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। एंड व्हाट यू कैन सी दैट से इफ एट ऑल द प्राइसेस आर रिमेनिंग स्टेबल देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट इफ द प्राइसेस आर रिमेनिंग स्टेबल। अगर आपका एक्सपेक्टेशन गलत हुआ एंड द प्राइजेस आर फ्लक्चुएटिंग, यानी प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है या तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, इवन इन दैट केस यू डोंट वरी, ये स्प्रेड स्ट्रेटजी होने की वजह से यू विल नॉट बी हैविंग सच अ ह्यूज लॉस। ऑन वाई एक्सिस दिस इज द प्रॉफिट और लॉस एंड दिस इज द स्पॉट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। एंड ऑफ कोर्स दिस स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जिसके लिए हमने ऑप्शन ट्रांजैक्शन एंटर किया है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस देखो, जैसे कि रिलायंस का प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में 2365.95, दैट इज द स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। और ये दो एक्सरसाइज प्राइस हम लोग लेंगे, तीन एक्सरसाइज प्राइस हम लोग लेंगे, एंड विद दैट से विल ट्राई टू से डेवलप दिस स्ट्रैटेजी ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट अस टेक 3 एक्सरसाइज प्राइस
2340, 2360 and 2380. तो 2360 इज वेरी नियर टू द स्पॉट प्राइस, तो वो प्राइस पे हम लोग दो ऑप्शंस बेचेंगे. अगर ऑप्शन बेचेंगे ना तो हमको 72 रुपीज़ मिलेंगे. तो 72 मिला हमको, 72 मिला हमको. 2340 वाला ऑप्शन हमने बाय किया, वो ऑप्शन हम लोग बाय करेंगे 2340 का, तो हमको 84.65 पे करना पड़ेगा. और 2380 वाला भी हम लोग बाय करेंगे, तो उसकी वजह से 62.5 हमको वापस पे करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, हमने दो ऑप्शन बेचे 2360 के एक्सरसाइज प्राइस के. सो व्हाट हैपेंस एट से वी विल रिसीव 72, वी विल रिसीव 72. और दो ऑप्शन हमने खरीदे, वन हैविंग एक्सरसाइज प्राइस 2340 एंड अनदर 2380. तो उसकी वजह से हमको हायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा 84.65 एंड 62.5. So 72 plus 72 minus 84.65 minus 62.5. So initially we have to pay 3 rupee 15 पैसे. That is the amount that we have to pay initially जब हम लोग ये butterfly spread strategy implement करेंगे, assuming that, considering that we are not expecting significant volatility in the price of the security. Now, of course you can understand it's a 2340 plus 2380, 4720 divided by 2, that is average is 2360, of course that you understand. Now spot price of the equity share, understand carefully, it may be lower than 2340, lower than equal to, it may be higher than equal to 2380, it may be 2360, or of course it can be in between that also. If at all the price of the security is less than 2340, then of course none of the option is going to be exercised, and we will be having the loss of 3 rupee 15 paise, that is the amount of the premium that we have paid. Any spot price of the equity share higher than 2380, you think about any of the price. Suppose the price of the security is 5,000 the day on which the option is expiring. What will happen? Whatever the amount of the payoff that I am going to receive itself is the amount of the payoff that I have to pay. So the payoff will be 0, 0. So 5,000 minus 2340. So the payoff will be 2660. 5,000 minus 2380. So it is 2620. 5,000 minus 2360, 2640 into 2, that comes to 5280. So you think about any price which is greater than 2380, every time the amount of the payoff will be exactly 0. Why? Because all options are worth exercising. Even in that case, we will be having loss of 3.15. Now importantly, what will happen? You just imagine that the price of the security is 2360, which is very near to the spot price. In that case, what will happen? I will exercise this option. What will be my payoff? My payoff will be 20 rupees. What amount of the premium I had paid? 3.15. So 20 minus 3.15, that comes to 16.85. That is the amount of the profit that I will be able to make. So if at all we correlate with this diagram, then in that case, say this is 3.15. That is the amount of the loss that I will have. This is 16.85. That is the amount of the maximum profit that I will have. And of course, very simple for you to understand, 2340 plus 3.15. That is 2343.15. 2343.15, that is the break-even point. And on the opposite side, once again, what will happen? This 2380 minus 3.15, that comes to 2376.85 is the break-even point.
This is the way we will be having the profit loss. Now continuing with the same example, suppose it has been given that say आपको butterfly spread strategy form करना है and you are expecting the price to be volatile, यानी कि you do not know the direction, the prices may increase like anything, the prices may decrease like anything. आपको लग रहा है कि substantial volatility होगा, कौन सी डायरेक्शन में पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली रिवर्स करना है. आप क्या करोगे, यू विल सेल दिस ऑप्शन instead of buying it, you will sell this option instead of buying it, and you will buy this option instead of selling it. बाय कितना करेंगे, वापस बाय दो ऑप्शन ही करेंगे. So let us see that say what will happen in this case. तो ये दो ऑप्शन सेल किया जाएगा और ये दो कॉल ऑप्शन बाय किए जाएंगे. When you will sell ऑप्शन तो आपको क्या मिलेगा, लोअर प्रीमियम मिलेगा 82.05 एंड 61.05, और ये दो ऑप्शन खरीदने के लिए आपको 73 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना होगा, हायर प्रीमियम. सो 82.05 प्लस 61.05 minus 73 minus 73, that comes to 2 rupee 90 paise. That is the amount of the initial premium that say you have to pay. So this is not a valid combination. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है. हमको ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसमें टोटल ऑफ दिस टू इज ग्रेटर देन दिस और इनिशियली हमारा इनफ्लो हो. ऐसा हमको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द गिवन एक्सरसाइज प्राइजेस. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. और उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में we will be having a diagram like this. It will be going in this way, जिसमें क्या होगा, that say when there is a significant volatility in the price, then in that case say you will be able to make a profit. So what happens that say 2360 का ऑप्शन खरीदने के लिए 73 का प्रीमियम है, तो 73 प्लस 73 इट कम्स टू 146. तो 146 हम लोग इनिशियली पे करेंगे. फिर हमको चेक करना पड़ेगा, दैट से 2320 वाला ऑप्शन बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 88.55 मिलेगा. और हम लोग 2400 का ऑप्शन बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 52.75, दैट कम्स टू 141.3. अगेन इन दैट केस इट कम्स नेगेटिव. ऐसा हमको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसमें देयर विल बी इनिशियल कैश इनफ्लो. तो उस केस में क्या होगा, इफ एट ऑल द प्राइसेस आर सिग्निफिकेंटली वॉलेटिलिटी, तो जो भी हमको पे ऑफ पे करना है उतना का उतना ही पे ऑफ हमको मिल जाएगा इफ द ऑप्शंस आर एक्सरसाइज. या तो क्या होगा, कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, और उस केस में जो हमको इनिशियल प्रीमियम मिला है वो हमारा फायदा हो जाएगा. सो दैट कॉम्बिनेशन ओवर हियर इज 2300 एंड 2420, 2300 and 2420. Average of both of them is 2360. So 2360 वाला हमने दो ऑप्शन बाय किया, तो 73 प्लस 73 हमको 146 पे करने का, उसके सामने हमको 109.8 मिलेगा प्लस हमको 43 मिलेगा, यानी 152.8 मिलेगा. So write down a note for the answer. In case trader is expecting price of security to be volatile, comma, then trader will 1. Sell 2 call options with different exercise price
Second, buy 2 call options, comma, for an exercise price in between about 2 prices, full stop. And this diagram is like flying bird, so it is given a name as the butterfly spread strategy.